پھر تو بہت بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فضل للعربی علی العجمی ولا للأحمر على الأسود ألا كلكم بنو آدم وآدم من تراب. آدمیت احترام آدمی، آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. عزیز القدر سنجے سراف صاحب، بزرگوں، پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، محبت برا سلام قبول کریں۔ ہم جموں کشمیر کے متنازع خطے کے باشندے ہیں۔ کوئی مسلمان ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی بودھ ہو، کوئی شہر کا رہنے والا ہو، کوئی گاؤں کا رہنے والا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی کشمیری بولنے والا، کوئی اردو بولنے والا، کوئی پنجابی بولنے والا، کوئی ڈوگری بولنے والا، کوئی ہندی بولنے والا، کوئی انگریزی بولنے والا، یہ زبانیں اور یہ علاقے اور یہ رنگ اور یہ نسل ہمیں انسانی سماج سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہم سب انسان، سب سے پہلے ہم انسان، سب سے پہلے، اور اس کے بعد اور کچھ۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اسلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اسلام کو سمجھے بغیر، اسلام کو پڑھے بغیر، اسلام کو جاننے بغیر اسلام پر الزامات دیے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے انسان، دنیا کے انسان، تم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہو۔ تم میں جو یہ ذاتیں اور قبیلے ہیں، ان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ بڑھوتری اس میں ہے کہ تم میں سے اچھا انسان کون ہے، سچا انسان کون ہے، دیانتدار انسان کون ہے، امانتدار انسان کون ہے، پاک باز انسان کون ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا اور انسانوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا کون ہے، وہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا۔ باقی سب تم ایک جیسے ہو۔ یہ ذاتیں اور قبیلے صرف تمہاری پہچان کے لیے۔ کسی گاؤں میں جا کر ہم نے غلام محمد سے ملنا ہوگا تو غلام محمد نام کے وہاں بہت سے لوگ ہوں گے، جب تک غلام محمد کی ذات کے ساتھ، نام کے ساتھ ہم ذات کا تذکرہ نہ کریں گے، غلام محمد نہیں ملے گا۔ کسی بستی میں جا کر ہم نے کسی رام چند نام کے بھائی سے ملنا ہوگا تو رام چند نام کے بھی وہاں بہت سے ہوں گے، جب تک ہم رام چند کے ساتھ رینا یا زچھی یا کوئی ذات نہیں بتائیں گے تو رام چند نہیں ملے گا۔ یہ ذات پات جو ہے یہ پہچان کے لیے، اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے کہ جو جس ذات کا ہے، کوئی سید ہے، کوئی براہمن ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی ڈوگرا ہے، تو اس نسبت سے وہ کوئی اچھا ہے نہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جس کا کیریکٹر اچھا، جس میں دیانت ہو، امانت ہو،
جس کی آنکھیں پاک ہو، جس کا دل پاک ہو، جو ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک برتے، وہ اچھا انسان ہے اللہ کے نزد۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا فضل للعربی علی العجمی، کسی عربی کو غیر عربی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا للأحمر علی الاسود، کسی گورے رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر فضیلت نہیں۔ الا کلکم بنو آدم، ہوشیار ہو کر سنو کہ تم سب آدم کے اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ گویا ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے پر مال کی حیثیت سے، منصب کی حیثیت سے، عہدوں کی حیثیت سے، یا رنگ، زبان اور ہیوز اور ہیو ناٹس کی بنیاد پہ کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے اسلام، تو اس کو آپ جاننے کی کوشش کریں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور میں اپنے بیٹے سنجے سراف کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید بھی اور مبارکباد بھی دوں گا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ یہ دلی میں بھی ہم سے ملے، اور دلی میں ہی ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ کشمیر جا کر ہم اپنے بھائیوں سے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، ہم نے جو 1990 کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات کے بعد جب ہم جیل سے چھوٹے 92 میں 2 سال کے بعد، تو اس وقت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، پنڈت برادری ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، اور ان کا اس خطے پہ جہاں کہیں بھی وہ رہ رہے ہوں، ان پر ان کا اسی طرح حق ہے جس طرح یہاں کی میجارٹی کا حق ہے۔ ان کو ہم اپنے حق سے کسی بھی حیثیت سے محروم نہیں کریں گے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں آپس میں تقسیم کریں۔ اور لیکن ہم نے ایک بات کہی ہے کہ بھائی ہماری پنڈت برادری، ہندو برادری جب آئے گی اپنے وطن میں، ان کے لیے آپ الگ زون نہ بنائیے۔ یہ سیف زون جب آپ ان کے لیے بنائیں گے تو اس طرح آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی بستیوں میں جائیں، ان کے مکانات ہیں، ان کی زمینیں ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کا کاروبار رہا ہے، اور ان کے ہمارے ساتھ صدیوں پرانے رشتے ہیں، اور وہ رشتے ہم خراب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان رشتوں کو دوبارہ استوار اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا سٹینڈ تھا، اور آج بھی برابر ہمارا یہی سٹینڈ ہے کہ یہ جو سیف زونز بنائے گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں آپ ایک ایک کمرے میں کئی فیملیز بٹھا دی گئی ہیں، نہ کوئی پرائیویسی ہے اور نہ کوئی سکون ہے۔ بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جوان بچے ہیں، جوان بیٹے ہیں، تو ایک ہی کمرے میں مختلف فیملیز کو جمع کرنا، یہ بہرحال سب سے زیادہ ہماری پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے، اور ہم میں جو پردہ اور شرم و حیا کی جو روایتیں ہیں، وہ روایتیں برقرار نہیں رہتی ہیں اس طرح جس طرح آپ لوگوں نے، حکومت نے یہاں ایک ایک کمرہ اور ایک ایک سیٹ بنا کر اس میں کئی فیملیز کو جمع کر رکھا ہے۔ یہ کوئی صحیح پلاننگ نہیں، اس کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کریں گے، اور ہم بتائیں گے گورنمنٹ کو کہ اول تو یہ سیف زون آپ کا بنانا، یہ بہرحال ہماری جو روایتیں ہیں، صدیوں پرانی جو ہماری روایات ہیں، ایک دوسرے کے قریب رہنا، آخر آپ لوگ یہ لوگ کیوں بھول رہے ہیں کہ ہم ہمسایوں کی طرح رہ رہے تھے؟ ہمسایوں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بیٹھتے ہیں، تو ان روایات کو آپ ختم کر کے پنڈت برادری کو یہاں لا کر
उनको सेफ जोन्स में बिठा दिया गया, और वो भी ये नहीं कि एक एक फैमिली के लिए एक एक अलग सेट बना दिया जाए, उसमें बाथरूम हो, किचन हो और बैठक हो और फिर बेडरूम्स वगैरह हो, एक एक फैमिली के लिए अलग अलग, ताकि उनकी प्राइवेसी महफूज रहे। नहीं, ऐसा नहीं, एक एक सेट बनाया और कई कई फैमिली, जैसे भेड़ों की जमात है या बकरियों की जमात है, वे एक ही रेवड़ में और एक ही कबाड़ खाने में उनको फेंक दो, और ये ना देखो कि भाई ये इंसान है, इनके जज्बात हैं, इनकी सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है वो प्राइवेसी है, वो पर्दा है, वो शर्म हया है। तो ये कदरें इन लोगों के नजदीक कोई कीमत नहीं रखती। तो यही हमारी बुनियादी बात जो है वो यही है कि भाई पंडित बरादरी जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ खिते पे जहाँ कहीं भी वो रह रहे हों, और जो भी स्टेट सब्जेक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसका हक बनता है जम्मू कश्मीर के इस खत्ते पे, जम्मू कश्मीर की जमीन पे, और वो अपनी अपनी जगहों पर आकर रहें, बसें। और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपनी 90% आबादी की बुनियाद पे उनकी तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेजॉरिटी की तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आपकी जान, आपका माल, आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपका मजहब, आपका अकीदा, आपकी इबादत गाहें, आपके मंदिर, आपकी जमीनें, आपके बागात, आपका सब कुछ इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको अपनी मेजॉरिटी की तरफ से ये खौफ आप अपने दिलों से निकालें, और आप हुकूमत से मुतालबा करें कि हम अपने अपने घरों में बसेंगे और अपने अपने घरों में जाकर अपनी ज़मीनों को आबाद करेंगे जो आपने बेची ना हो, या जो कहीं आर्मी और फोर्सेस के कब्जे में ना हो। मकानात हैं, वो मकानात उनकी मरम्मत करवाएं। हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती थी कि भाई मकानात जहाँ तोड़ फोड़ का शिकार हुए हैं वहाँ उनकी मरम्मत करवाई जाए, और वहाँ के जो बसने वाले थे उनको अपने अपने मकानों में और अपने अपनी बस्तियों में बसने का मौका फराहम किया जाए। लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं कर रही। हुकूमत के अपने मंसूबे होते हैं, उनका अपना एक नक्शा होता है, उनके अपने खाके होते हैं। वो ये नहीं देखते कि किस तरह यहाँ भाईचारे का माहौल कायम हो जाए, किस तरह भाईचारे का माहौल बरकरार रहे, और किस तरह भाईचारे के माहौल को उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। ये हुकूमत की पॉलिसियाँ नहीं होती हैं, बल्कि उनकी हमेशा हर दौर में पॉलिसी ये रहती है, डिवाइड एंड रूल। ये उनकी पॉलिसी, और हम इस पॉलिसी के साथ नहीं हैं। मैं ऐलान करता हूँ, हम इस पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। डिवाइड एंड रूल ये गलत पॉलिसी है। हम इंसानी समाज को एक वहदत समझते हैं, एक इकाई समझते हैं, सारा इंसानी समाज। हमारे नजदीक इंसान के साथ कोई इम्तियाज बरतना रंग की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, जात पात की बुनियाद पे, सरमाया और गुर्बत की बुनियाद पे, शहरी और देहाती की बुनियाद पे, ये इम्तियाज, इसको हम मुस्तरद करते हैं। इस पर हम यानी बहुत ही इसको नफरत की निगाहों से देखते हैं। ये इंसानी समाज को तकसीम करना, ये सारी जो यहाँ सियासी पार्टियां हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए हमको तकसीम करते हैं। मुसलमानों को तकसीम करते हैं, ये गुजर है, ये पहाड़ी है, ये नेशनल है, ये कांग्रेस है, ये, और फिर मसलक की बुनियाद पे हिंदू बरादरी को भी तकसीम करते हैं। ये डोगरा है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये किसी और जात के साथ ताल्लुक रखता है। तो मकसद इनका सिर्फ ये होता है कि भाई तकसीम करो और फिर अपना वोट बैंक बनाओ। तो हम इसके खिलाफ हैं। हम वोट बैंक नहीं बनाते, हम सिर्फ इंसानी समाज में इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं। इंसानी और अखलाकी अक़दार का हम तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। हर एक को हम जियो और जीने दो, ये हमारी पॉलिसी है। जियो और जीने दो, अमन का माहौल। और ये जो हुकूमत के दावे हैं भाई अमन, हम अमन चाहते हैं, वो अमन जिस अमन का वो लोग नाम देते हैं, वो अमन बंदूक सीने पे रखकर, बंदूक कनपटी पे रखकर खामोश रहो,
हमारे खिलाफ कोई आवाज मत उठाओ, हमारे जुल्म के खिलाफ आवाज मत उठाओ, हमारी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज मत उठाओ। बस जब बंदूक की नोक पे किसी को खामोश बनाया, ऐलान करते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन कायम करना चाहिए। अमन नहीं है, ये कब्रिस्तान का अमन है। जुल्म की बुनियाद पे आप अमन कायम नहीं कर सकते। अमन सिर्फ उसी वक्त कायम हो सकता है जब आप अदल करेंगे, जब आप इंसाफ करेंगे, जब आप ताकत की बुनियाद पे किसी का हक नहीं छीनेंगे, तो उस वक्त अमन होगा। ये इसमें कैसे अमन होगा कि आप हमारे जवानों को गिरफ्तार करके 14-15 साल के जवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत और फिर जम्मू की गर्म और दूर दराज जेलों में भेजते हैं और फिर कहते हैं हमने अमन किया। आप हमारे घरों में घुसकर हमारी इज्जतें और असमतें लूटते हैं, आप हम पर ज्यादतियां करते हैं, आप हम पर जुल्म करते हैं और फिर दुनिया को बताते हैं कि भाई हम अमन कायम करते हैं। तो ये अमन, इसको अमन नहीं कहा जा सकता, इसको ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल कहा जाएगा। और तारीख इस दौर को ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी जो ताकत की बुनियाद पे अमन कायम करने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो हिंदुस्तान के साथ जो हमारा झगड़ा है, मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। आप बिल्कुल दिल की गहराइयों और यानी जहन की बिल्कुल सफाई के साथ, वुसअत जहन के साथ आप हमारा केस समझने की कोशिश करें। आपको आप में गलतफहमियां पैदा की जा रही। हमारी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई इस बुनियाद पर नहीं है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत है, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, नहीं, इस बुनियाद पर नहीं है। हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के साथ फिरकदाराना बुनियादों पर नहीं है। हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के साथ उसूलों की बुनियाद हिंदुस्तान ने हमारे साथ वादे किए हैं, उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। हम उनसे सिर्फ ये कहते हैं कि भाई वादे पूरे करो और लोगों से पूछो कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला करेंगे, वही फैसला हम कबूल करेंगे। ये हमारा दावा है और ये हमारा उसूल है। मैं आपको बताऊंगा, खासतौर अपने बेटों को, जो पंडित बरादरी से अपनी बहनों बेटियों को, कि कौरव और पांडव की लड़ाई में एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे। तो पांडव उनकी लीड कर रहे थे अर्जुन, और अर्जुन जब मैदानी जंग में आ गया, दूसरी जानिब कौरव थे। तो अर्जुन का जो रथ था जिस पर वो सवार थे, उसकी लगाम जो है वो महाराज कृष्ण पकड़े हुए थे। गौर से सुनिए, अर्जुन ने जब देखा कि कौरव जो मुकाबल में हैं ये हमारे चचेरे हैं, ममेरे हैं, बसेरे हैं, फफेरे हैं, हम इनके साथ क्या लड़ेंगे। तो उन्होंने महाराज कृष्ण से कहा, महाराज ये तो हमारे अपने भाई बंद हैं, हम इनके साथ क्या लड़ेंगे, हम तो फिर अपने हाथों अपना खून बहाएंगे। तो महाराज कृष्ण ने जो अर्जुन को जवाब दिया, वो जवाब आपको याद रखना चाहिए। महाराज कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, ये उसूलों की लड़ाई है, इसमें यह नहीं देखा जा रहा कि मेरे उसूल के खिलाफ मेरा भाई है या मेरा चचेरा मेरा मसेरा है, कौन है इस उसूल के खिलाफ, ये नहीं देखा जाता। उसूल की लड़ाई में उसूल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उसूल पर कारबंद रहना चाहिए। चाहे बाप को बेटे से लड़ना पड़े, बेटे को बाप से भाई से लड़ना पड़े, लेकिन उसूलों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसूलों पर कोई सौदा नहीं किया जाता। मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कभी हिंदुस्तान के साथ इस बात पर सौदा नहीं करेंगे कि वो 10 लाख के करीब फौजें हमारे सीनों पर बिठाकर हमारे सीनों पर मोंग दलें और फिर वो कहें कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है। ये जाबिराना तसल्लुत, ये फौज की बुनियाद पे तसल्लुत, ये बंदूक की बुनियाद पर तसल्लुत, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात बता देना चाहते हैं, उसूलों की लड़ाई है, हम इंशाअल्लाह उसूलों पर जमे रहेंगे और हम इंशाअल्लाह इस जुद्दोजहद को मुकम्मल तरीके से आगे ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमेशा जब ताकत और सदाकत की जंग होती है तो तारीख के हर दौर में ताकत ने
हार मानी है और सदाकत ने जीता। ये तारीख का फैसला है और यही फैसला इंशाअल्लाह हमारे हक में भी होगा कि ताकत झुकेगी और सदाकत जीतेगी इंशाअल्लाह। हमारा उसूल जो है, हमारी उसूली लड़ाई, हमारी कोई फिरकदाराना लड़ाई नहीं है। आप देख लीजिए कि यहाँ जो हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, ये मुसलमानों की ज़मीनें नहीं है, ये सब की ज़मीनें हैं। ये जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की, जिसको भी स्टेट सब्जेक्ट हासिल होगा उसकी ये ज़मीन है, उसके ये जंगलात हैं, उसका ये पानी है, उसका ये पावर है, उसका ये सब कुछ जो जम्मू कश्मीर का सरमाया है। यहाँ मैं बताऊंगा आपको 28 लाख कनाल पे जमीन पे भारतीय काबिज फोर्सेस ने कब्जा किया, 28 लाख कनाल। और आज भी जहाँ कहीं वो खाली जमीन देखते हैं उस पर कब्जा जमाते हैं बंदूक की नोक पे। हमारे जंगलात, हमारा जो सब सरमाया है, जंगलात को लूटते हैं। और जहाँ भी आप जंगल के करीब जाएंगे वहाँ फोर्सेस के जो कैंपस और बैंकर्स हैं उनमें बैंड सा मशीनें लगाई गई हैं। बैंड सा मशीनों पर वो पंजाब से सिख नजारों को बुलाते हैं और वहाँ जंगलों से दरख्त काट कर वहाँ उनकी चिराई करते हैं, फिर फर्नीचर बनाकर अपने घरों को भेजते हैं। ये दूसरा नुकसान है। सिर्फ शोपियान जिले में 5200 कनाल पे जो जंगलात की जमीन है कब्जा किया गया है। और माहिरीन जंगलात जो हैं उनका कहना है कि 3 लाख से 4 लाख तक वहाँ जंगलात के दरख्त कटेंगे। ये हमारी मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो आप लोगों की भी प्रॉपर्टी। हम तो आप लोगों की प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। हम ये नहीं आपके मंदिरों पे नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को लाकर उनको कब्जा दिया गया है, वो वहाँ बिठा दिए गए हैं। आपकी जो जमीनें, जो ट्रस्ट की जमीनें हैं, उनको मंदिरों के साथ जो वाबस्ता जमीनें हैं उनको फरोख्त किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। और फिर ये वो सरमाया कहाँ जाता है? वो किसी ट्रस्ट को नहीं जाता, वो अपने घरों को वो अपनी आयश-इशरत के लिए खर्च करते हैं। तो हमको आप समझने की कोशिश करें कि हम तो जम्मू कश्मीर के हर मुतनफ़ जो यहाँ का बाशिंदा है उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और जो प्रॉपर्टी हमारी है उसका हम तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं पानी हमारा है, ज़मीन हमारी है, प्रोजेक्ट बनता है बिजली का तो सिर्फ 12% हमको दिया जाता है, बाकी सारा ले जाकर कहीं हरियाणा को बेचा जाता है, कहीं राजस्थान को, कहीं दिल्ली को, कहीं पंजाब को, और हमें सिर्फ 12% पावर के इस्तेमाल का मौका दिया जाता है। तो हम अगर इसका तहफ़्फ़ुज़ करें वो तो सब बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें हम अपने लिए ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो हिंदुस्तान के साथ लड़ाई है वो उसूलों की लड़ाई है और हम ये उसूलों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन इसमें आपका घरों से जाना, आपका फिर यहाँ से हिजरत करना, और फिर जब आप घरों में आ रहे हैं तो आपको माइग्रेट कहा जा रहा है। भाई आप लोग माइग्रेट नहीं हो, आप यहाँ के असली बाशिंदे हो। आपका यहाँ हक बनता है कि आप यहाँ आएं और अपनी अपनी बस्तियों पर घर बसाएं और बस्तियों में रहें खुशी से, आराम के साथ, जैसे हम सदियों से रहते चले आ रहे हैं, भाईचारे की फजा में, और एक दूसरे की गमी और खुशी में शिरकत करते हैं, एक दूसरे का गम बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। वही माहौल हम दोबारा पैदा करना चाहते हैं और यही हमारा उसूली मौक़िफ़ है। तो इसमें हम आप सबका खुशामदीद करते हैं, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो बहुत खुशी से मैं आपके सवालात का जवाब देने का जवाब दूंगा।